जिंदगी के हर मोड़ पर मुस्कुराना सीखो। जिंदगी के हर मोड़ पर मुस्कुराना सीखो। दर्द के आगे खुद को संभलना सीखो। बुढ़ापे की बातें बस अफसाने हैं। बुढ़ापे की बातें बस अफसाने हैं। दिल से जवान हो तो हर उम्र सुहानी है। Hello and welcome back, friends, to another episode of Aging Gracefully with Vikas Hushi. Embrace the wisdom, celebrate the journey, because life after 60 is for living, not for mere surviving. क्यों? तो जो लोग कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं. So today's topic is, friends, navigating emotional well-being and mental health. Now this topic is an important part. As we grow older, we have to take care of your mental health and our physical well-being also. Now, it is very easy to say so, but when we just go deeper into it, then we realize there are many other points which we have to understand, and hence this topic. So, as we age, it is crucial to age very gracefully. That is why we have started this channel for. इसीलिए तो हमने ये शुरुआत की कि हमें ये सोच बदलनी है. हमें एजिंग ग्रेसफुली होना चाहिए. So it involves acknowledging the emotional changes that comes with aging and developing strategies to cultivate mental resilience and inner peace. That is what we will be addressing today. मतलब अगर हमें आगे जैसे उम्र बढ़ती है तो हमें कुछ अपने आप में बदलाव लाने पड़ेंगे. जैसे एक बदलाव मैंने आपको कहा कि हम आपको आपके नियर एंड डियर वंस को बोलना है. किस इंसान को सब कुछ हाथ में मिले वो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगना चाहिए. सिंपल रीजन, इफ यू आर सिटिंग इन वन चेयर and everything is being served at table or at your chair, now you will become dependent. उसके बाद आप बैगेज बन जाओगे. उसके बाद आपको प्रॉब्लम चालू होने लगे. उसके बाद अरे वही प्रॉब्लम शिफ्ट हो जाएंगे आपके नियर और डियर वंस पे. ये प्रॉब्लम है. सो दैट इज टू बी टोल्ड. वैसे ही हम जैसे उम्र बढ़ती है हमें कुछ बदलाव अपने खुद में लाने पड़ेंगे. वर्ल्ड इज ऑलवेज मूविंग अहेड. कोई रुक नहीं रहा है, लेकिन जो साथ चला वो अपने मंजिल पा लिया. दैट इज व्हाट वी आर एड्रेसिंग टुडे, फ्रेंड्स. सो अंडरस्टैंडिंग इमोशनल शिफ्ट्स इन एजिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट of our aging process. So as we grow older, experience numerous transitions, retirement, loss of loved ones. हो सकता है पूरे उम्र में कहीं अपने नजदीक एक रिश्तेदार खो दिए. उनकी उम्र भी हुई होगी. एनीथिंग कैन हैपन. सो डिक्लाइनिंग फिजिकल हेल्थ, ये भी होता है कि फिजिकल हेल्थ इट इज नॉट, वी आर नॉट एबल टू कोप अप विद द थिंग्स. चेंजेस इन लिविंग सर्कमस्टांसेस, ये भी होता है. नाउ यू हैव टू गेट अकस्टम टू दिस थिंग्स. और इसे इसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग इमोशनल शिफ्ट्स. ये इमोशनल शिफ्ट हो रहा है आपका. दीज ट्रांजिशंस कैन लीड टू फीलिंग ऑफ आइसोलेशन. उसमें स्ट्रेस आएगा, सैडनेस आएगा, एंग्जाइटी आएगी, बिकॉज लोनलीनेस इज नॉट एट ऑल अ फेवरेबल कंडीशन. बट यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फर्स्ट how you should not be lonely. So you have to understand the emotional shift. ये होने वाला है, ऐसे ही होता है. जैसे मैं हमेशा कहता हूं, अपने आप को 25 साल की उम्र से कंपेयर मत करो, because he is working at his speed, he is energetic, he is allowed to do mistakes, but we are not allowed. We will be now preaching on how not to make the mistakes because we are rich in experiences. So this emotional shift is important to be understood. So understanding the emotional ups and downs are the natural part of life's journey. ये तो होता ही है. हमने अपनी जर्नी में भी कई अप्स एंड डाउन्स देखी, लेकिन इस उम्र में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है to prevent ourselves to be lonely. So this becomes an essential part for aging gracefully. You can be on the positives of this life stage.
such as having more time for self discovery and pursuing passions that may have been set aside earlier. कुछ कारणवश अपने सपने छूट गए थे तो अभी पूरा करने का समय है, तो यू आर बिजी विद द थिंग्स. इमोशनल शिफ्ट होना चाहिए. So also you have to build an emotional resilience. You have to fight back the loneliness. You cannot allow yourself to be sad. You cannot allow yourself to be dependent. You cannot allow yourself to be desperate. No. We were independent. We are independent. We will be independent. That should be the motto. So emotional resilience, it involves being able to adapt to the and recover. मतलब अडेप्ट तो कर ही रहो चेंजेस के साथ, लेकिन रिकवर भी करना चाहिए ना फ्रॉम लाइफ चैलेंजेस. प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड, माइंडफुलनेस एंड सेल्फ कंपैशन, this will build resilience in you. So the grateful mindset allows you to appreciate the present and find joy in small things, while mindfulness helps you to remain in moment. मतलब पास्ट में नहीं, फ्यूचर में भी नहीं, आज में जी रहा हूं, खुशी से जी रहा हूं, अपनी खुशी से जी रहा हूं. दैट इज इंपॉर्टेंट. सो दिस विल रिड्यूस एंजाइटी और स्ट्रेस. जो मतलब जिसे मैं कहता हूँ फालतू में स्ट्रेस आ गया. फालतू में मतलब क्या, मैं सोच रहा था पिछले मैं कैसा अच्छा आदमी था, आगे चल के मेरा क्या होने वाला है. अरे यार, तो आज की जिंदगी अभी की जी ले, वो भी खुशी से जी ले. सो अडेप्टिंग वी आर डूइंग दैट, but emotional resilience we have to build over the time. We have to be preparing ourselves for emotional shifts. ये करना पड़ेगा. So self compassion encourages towards yourself. खुद के बारे में सोचोगे, खुद के वेल बीइंग के बारे में सोचोगे, ये इंपॉर्टेंट है अभी. तो क्या बाकी के बारे में सोचो नहीं? नहीं नहीं, सोचना है, लेकिन अभी तक आप वही कर रहे थे, है ना. पहले नौकरी कर रहे थे, धंधा कर रहे थे, भाग रहे थे इधर उधर, सबके लिए काम करता रहा, सबके बारे में सोचता रहा, खुद के बारे में सोचने के लिए समय नहीं था. अब समय है. अब नहीं है ऐसा मत कहिए, आपको टाइम निकालना है खुद के बारे में सोचने के लिए. दैट इज व्हाट सेल्फ कंपैशन इज अबाउट. नाउ दिस विल हेल्प यू इन पर्टिकुलर इन डिफिकल्टी ऑफ फ्रस्ट्रेशन. जब भी अकेले बैठोगे तो लोनलीनेस आएगा, तो फ्रस्ट्रेशन हो सकता आएगा, बट यू हैव टू सी योर पिछले अचीवमेंट्स क्या थे. यू वर सो सक्सेसफुल पर्सन. यू कैन नॉट अलाउ योरसेल्फ टू डिटोरिएट. पीछे की तरफ जाना ही नहीं है, बिकॉज यू वेर सक्सेसफुल, यू आर सक्सेसफुल. यू आर, अभी ये प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि इमोशनल शिफ्ट हो रहा है. दैट इज द रीजन. So one of the point in this is social connections. As you improve your social connections, as you increase your social connections, you are far way better than alone. Correct? Because loneliness creates stress and anxiety. और धीरे धीरे प्रॉब्लम तभी आता है जब अपने ही लोग बातें करना शुरू करते हैं. अभी तो इनके पास कुछ काम नहीं है, ये तो रिटायर हो चुका, अभी क्या काम करेंगे, ये काम भी नहीं कर पाएंगे. ये भी होता है. You see, then we feel ridiculed, insulted. Why should we get insulted? Why should we get ridiculed? We were independent, we are independent. That should be the motto and that should be the zeal we should work with. So, maintaining social connections will improve on this part. हम उम्र मिलेंगे, मैं तो कहता हूं कि इसके लिए जरूरी नहीं कि हम उम्र हो. People like to share their experiences, so also people like to hear about your stories of success. You are the deadly combination of knowledge and experience. So as I said before, that the young person has got the liberty to go make mistake, but if he gets a good advisor, if he gets a good mentor in you, now he will walk the path at a faster rate. That is, you are generating a good generation for future. So developing growth oriented mindset is also up to you. Growth is not at all related to age. It happens at any point of time.
मैंने कहा ना कि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने 60 साल के बाद ही सक्सेस हासिल किया है, लेकिन उन्होंने they were working towards their set goals. They were positive in their attitude, they were positive in their approach, and that is the reason they were successful. So growth has got nothing to do with age, but हम लोग ही मतलब उसे जोड़ देते हैं, इस उम्र में थोड़ी ना मैं कोई सीख पाऊंगा। क्यों नहीं सीख पाओगे? Your brain doesn't understand age, you are making him understand age. आप अपने ब्रेन को फीड कर रहे हो, नहीं अभी मैं 60 साल का हो गया, अभी क्या हुआ है, मेरे में ताकत नहीं है। क्यों ताकत नहीं है? पहले थी, तो जैसे 60 हो गया तो ताकत खत्म हो गई। दैट इज व्हाट यू आर फीडिंग इन योर ब्रेन, एंड हेंस दैट इज डिटोरेटिंग योर फिजिकल हेल्थ। क्योंकि अगर दिमाग ही बोल रहा है कि नहीं तुम्हें ताकत नहीं है, तो शरीर तो वैसे भी छोड़ देगा। सो ट्रेन योर ब्रेन दैट यू हैव द कैपेसिटी। You don't have to utter anything, just be engaged. Your growth mindset should be always active. This will help you to take over the challenging situations life is posing, because life is not going to excuse you because of age. Life is going to pose challenges every day, every minute. It is sparing no one. मतलब अगर आप सोच रहे हो कि चलो अभी मुझे ही सब चैलेंजेस आ रहे हैं, नहीं नहीं, सबको आते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि द पीपल हु टेक द चैलेंजेस ऑन द ग्रोथ प्रोसेस, ऑन द वेरी पॉजिटिव माइंडसेट, दे ओवरकम द चैलेंजेस, and the people who are on the negative mode, who have trained their brain that since their age is the factor which is restricting them from growth, they will never grow. कभी हो ही नहीं सकता, because they themselves have trained their brain in that way. So if at all you are worried about the things कि नहीं ऐसे उम्र में थोड़ी होता है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, ये जो आपके मन में आ रहा है, तो यू कैन ऑलवेज सीक अ प्रोफेशनल एडवाइस। देखो मैंने कहा ना कि अरे जो 60 साल की उम्र हो गई, मतलब ये थोड़ी ना कि साथ में एक डॉक्टर को लेके चले, क्योंकि डॉक्टर भी तो 60 साल का होने वाला है। व्हाट इज ही डूइंग? ही इज कीपिंग हिमसेल्फ बिजी। हिज प्रोफेशन इज लाइक दैट, ही कैन गिव अप द प्रोफेशन एट हिज विल। वो कभी भी छोड़ सकते हैं, लेकिन कभी छोड़ते हैं क्या? नहीं, बिकॉज दे विश टू बी बिजी। And if not, the patient themselves they keep them busy. हमारा फेथ होता है ना डॉक्टर पे, हम उसी डॉक्टर पे चले जाते हैं, because he is now aware of everything about our ailments, our processes, everything is aware. So हम उसकी सलाह लेंगे, so उसकी सलाह ले लो। Now he will guide you to be mentally prepared to take on the challenges the life is posing, to be on the growth mindset, to be able to shift your emotional feelings. So there should be, you should adapt to the changes, and you should understand the emotional shifts so as you become emotionally resilient towards life, because life as it is going to pose problems every now and then. वो challenges pose करते ही है, और मैं कहता हूँ ये एक्सेप्शन नहीं है। मतलब आपको लगेगा अकेले मेरे पास ही ऐसा होता है, नहीं नहीं, क्योंकि आमतौर पे जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो हमें पहले फीलिंग ये आती है कि सब मेरे साथ ही ऐसा हुआ है, मैं ही ऐसा हूँ। नहीं नहीं, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बिकॉज लाइफ इज नॉट स्पेयरिंग एवरीवन, एवरीबॉडी इज फेसिंग द चैलेंजेस। सक्सेस वही पाता है जो ग्रोथ माइंडसेट पे होता है। सो सीकिंग सपोर्ट और प्रोफेशनल एडवाइस इज अ बेटर ऑप्शन। सो फ्रेंड्स, ये जरूरी इसके लिए है क्योंकि जिंदगी के हर मोड़ पर मुस्कुराना सीखो, दर्द के आगे खुद को संभलना सीखो। बुढ़ापे की बातें बस अफसाने हैं, बुढ़ापे की बातें बस अफसाने हैं, दिल से जमा हो तो हर उम्र सुहानी है। I sign off on this note, friends, and we meet again in another episode of Aging Gracefully with Vikas Joshi. Embrace the wisdom, celebrate the journey, because life after 60 is for living, not for mere surviving. क्यों? अरे जो लोग कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। बस आप कमाल मत करो, be busy with something. So enjoy the day, friends, enjoy the life. It is a one-time activity. Do enjoy.